JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the concept of partnership firm, in which meaning of partnership firm, characteristics of partnership firm and merits and demerits of partnership firms are explained. Let's see all the topics in a deep through this video. Meaning of partnership firm. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of business carried by all or any of them, action for all. In India, partnership is existed as per the Indian Partnership Act 1932 law. पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सभी लोग एग्रीड होते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सबके बीच में शेयर होगा और ये जो बिजनेस है वो दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिल बांट के चलाएंगे और उसका जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसे शेयर करेंगे। इंडिया में हाल में जो पार्टनरशिप एक्ट काम कर रहा है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक काम करता है और उसकी प्रोविजन हर एक पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करनी होती है। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of partnership firm like agreement based on relation, unlimited liability, number of partners, establishment process, legal activities, profit motive, lifespan, administrations and control, transfer of ownership, legal control, more capital investment, interference of government and taxes, and distributions of risk. Let's see. Agreement based on relation. Partnership is a relations arising out of the agreement. Agreement can be oral or in a written form, even by behavior with each other which leads to certain understanding. Partnership came into existence. हम ये देख सकते हैं कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बेस्ड दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशन बिल्टअप होता है। हालांकि एग्रीमेंट करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट कई बार ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये डिजायरेबल है कि एग्रीमेंट रिटन हो तो ही वो लीगल बेनिफिट्स एंजॉय कर सकेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी. एवरी पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड. When the debts of partnership firm increases rather than their assets, at that time every partners are liable to sell their personal assets to pay off these debts. That is called as an unlimited liability. हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप में भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। जब उनकी एसेट्स के सामने उनका डेट्स बढ़ जाता है तो सभी पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके डेट्स को पे ऑफ करना होता है, जिसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स. इन अ पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड and maximum 20 partners in a general business and 10 partners in the banking business are required. पार्टनरशिप दो तरह की होती है। जनरल बिजनेस में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन जो बैंकिंग बिजनेस होता है या फाइनेंस रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसमें मिनिमम 2 मेंबर यानी 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस. Process of establishment of the partnership firm is easy in comparison of company, but it is little bit difficult in a comparison of sole proprietorship firm. हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस इजी है कंपनी के मुताबिक, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के सामने हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत लेंथी और डिफिकल्ट लगती है। लीगल एक्टिविटीज. पार्टनरशिप इज अराइजेस ड्यू टू द लीगल work or legal activities between the partners. So, partnership firm is established only and only for the legal liabilities and the legal work. None kind of illegal work is permitted in this firm. एक्ट के मुताबिक हम देख सकते हैं कि जो भी पार्टनरशिप पार्टनर्स फॉर्म करते हैं वो लीगल काम के लिए ही फॉर्म की जाती है, इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जाती। इसलिए हम देख सकते हैं कि सभी जो एक्टिविटी होती है पार्टनरशिप में वो लीगल तौर तरीके से ही हो सकती है। Profit motive. Partners have the mainly intentions to earn the profit, but it have been observed that sometimes partners have the intentions of service motive, just like in gym, खाना, club and library. ज्यादातर हम देखते हैं कि सभी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट मोटिव ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट
कम या सर्विस मोटिव ज्यादा हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जिम खाना, क्लब, लाइब्रेरी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से चलाई जाती है, ज्यादातर पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव ही रहती है। लाइफ स्पैन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज शॉर्ट ड्यू टू द डेथ, insanity or insolvencies of the partner, firm gets dissolved. So, lifespan is lower in comparison of company and cooperative society. पार्टनरशिप फर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि कोई भी पार्टनर की डेथ या पागलपन या दीवानापन हो जाए, अदरवाइज इंसॉल्वेंसी या नादारी डिक्लेयर हो जाए, तो उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है या पार्टनर्स ऑलमोस्ट सभी सेपरेट हो जाते हैं। उसके हिसाब से ही पार्टनरशिप का जो लाइफ स्पैन है वो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुकाबले बहुत कम या लाइफ स्पैन उसका छोटा होता है। एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल, ऑल द पार्टनर्स कलेक्टिवली और एनीवन और टू पार्टनर्स कैन रन द पार्टनरशिप फर्म। Generally, all partners have right in taking the decision pertaining to the business and can participate in its administrations. पार्टनरशिप फर्म ऑलमोस्ट सभी पार्टनर्स के साथ बैठ के मिल बैठ के जो भी डिसीजन होते हैं वो शेयर करके लिया जाता है, यानी उसका टोटली एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक वे से होता है और उस पर कोई एक पार्टनर का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन सभी लोग मिल बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल सब लोग इकट्ठा होके मेजोरिटी के फॉर्म से लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर्स ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर by him without the consents of the other remaining partner. So transfer of ownership is possible, but the consents is required from the other partner. पार्टनरशिप की जो भी ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन दूसरे पार्टनर को पूछे बिना उसे ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो दूसरे पार्टनर्स का कंसेंट होना कंपलसरी है। लीगल कंट्रोल, राइट्स, ड्यूटीज, registrations of partnerships and the other provision have been mentioned in Indian Partnership Act, and according to this way they have to follow as per legal control. Most probably according to this way legal matters oriented partnerships is incurred. हम देख सकते हैं कि सभी पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशंस ऑफ पार्टनरशिप ये सब लीगल लॉ के मुताबिक या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक होते हैं, यानी सभी उसमें लीगल कंट्रोल माने जाते हैं और देखे जाते हैं। मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट हैव बीन ऑब्जर्व दैट when more than two persons are associated in this form, then more capital investment have been observed in comparison of sole proprietorship firm. हम देख सकते हैं कि इस टाइप के पार्टनरशिप फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा लोग को मिल बांट के आते हैं और कैपिटल ले आते हैं अपने साथ, इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की कंपैरिजन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, देयर इज आल्सो द मोर इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्सेस इज आल्सो हायर इन कंपैरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज्यादा भी होता है, और क्योंकि प्रॉफिट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और टैक्सेस भी ज्यादा रहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की कंपैरिजन में। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिस्क, इन पार्टनरशिप फॉर्म more than two partners are working or associated with each other, so risk is to be divided. हम देख सकते हैं कि दो से ज्यादा पार्टनर होने की वजह से जो भी रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है। So those all are the different characteristics have been observed. Let's see the various merits of partnership firm, in which easy establishment, more efficiency, more creditworthiness, more capital, right decisions, contact with customers, distributions of risk, decentralization of economic power and dynamism have been observed. Let's see in deep. Easy establishments. Establishments or the formations of partnership is easy and economical in comparison of company, but it is little bit difficult in comparison of sole proprietorship firm. No more government restrictions are implemented on it, and approval is also easy for registration. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो भी होता है उसकी प्रोसेस बहुत इजी गोइंग होती है कंपैरिजन ऑफ कंपनी के मुकाबले। हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हालांकि नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोसेस को फॉलो करके पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, वो वॉलंटरी होता है। किसी को करना है तो वो कर सकता है, किसी को नहीं करना है तो वो नहीं कर सकते। मोर एफिशिएंसी,
It has been observed that when two or more than two people are associated in the business, at that time skill and efficiency also increases. Even if capital investment is also higher, so more efficiency have been observed. हम देख सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिल बांट के काम करते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है और उस फॉर्म की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हर एक की स्किल का, इंडिविजुअल स्किल का हमें बेनिफिट मिलता है. मोर क्रेडिट वर्दीनेस. The liability of partner is unlimited, so third parties become more liberal while transacting with the firm, that result into more credit worthiness of the firm. हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, तो जो भी थर्ड पार्टी पार्टनरशिप के साथ डील करती है वो बेफिक्र रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यदि कोई कंपनी डेट्स ज्यादा भी कर देगी तो उसके पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उसे पे ऑफ करना पड़ेगा, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होती है. मोर कैपिटल. As more capital have been observed in partnership firm in comparison of sole proprietorship firm, because more than two or two plus person invest the capital. हम देख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि दो और दो से ज्यादा लोग कैपिटल को ले आते हैं और बिजनेस रन करते हैं. राइट डिसीजन. It have been observed that then many more skilled people are associated in partnership, so their skill is benefited and proper or right decision is to be taken. हम देख सकते हैं कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने फील्ड के बहुत अच्छे और वेल एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, तो हमें उसकी स्किल का और उसके नॉलेज का पर्सनल बेनिफिट मिलता है, तो हम राइट डिसीजन ले सकते हैं. कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स. लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, द पार्टनरशिप कीप द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉई, so they keep customers and employee with them by taking the personal interest in their problems. कई बार हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में कस्टमर्स के साथ या एम्प्लॉइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन उसके ओनर के होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होते थे. तो उसी वजह से कंपनी बहुत अच्छे से उसके एम्प्लॉइज या कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सुन सकती है और उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोटेक्टिव स्टेप्स ले सकती है. Distributions of risk. In the partnership firm, risk is to be divided between two or more than two person. So, distributions of risk have been observed. हम देख सकते हैं कि पार्टनर्स दो से ज्यादा होते हैं, तो बिजनेस में शायद कोई रिस्क या लॉस होता है तो वो दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिवाइड हो जाता है, तो रिस्क का इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. When two or more than two peoples are involved in the company or in the business, then capital investment, even if the profit is also shared, so decentralization of economic power have been observed. It is not possible to maintain the economic power in the few hands, but it is decentralized. हम देखते हैं कि दो से ज्यादा लोग होते हैं पार्टनरशिप में, और उसकी वजह से ही जो भी प्रॉफिट होता है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हर एक के बीच में अलोकेट हो जाता है, यानी कोई एक का इकोनॉमिक पावर नहीं रहता, क्योंकि सभी पार्टनर सब में इन्वॉल्व होते हैं. Dynamism. Partnership is a dynamic organization. Partners have liberty to make the changes in business policy, like sole proprietorship. Amendments of any decision taken can be initially unanimous in business if it turns out to be non-profit making. हमें देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी डायनेमिज्म है, यानी वो फ्लेक्सिबल है. सभी पार्टनर्स मिल के और एकजुट होके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं. शायद इसे लगता है कि ऐसे डिसीजन से बिजनेस को लॉस होता है, तो अपने डिसीजन में चेंजेस भी ला सकते हैं. Those all are the merits have been observed in partnership firm. Let's see some demerits in a partnership firm, like unlimited liability, limited duration, absence of ownership transfer, possibilities of disputes, maintain secrecy, delay in decision-making process. In a deep, unlimited liability. Every partner having the unlimited liability, so to pay off their debts of firm, they have to sell their personal assets, and so that's why reason sometimes partners become ruined. हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, तो कई बार बिजनेस में लॉस आने की वजह से पार्टनर्स को अपने खुद के पर्सनल असेट्स भी बेचकर अपने बिजनेस को जिंदा रखना होता है, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज देखी जाती है. इसीलिए पार्टनर्स हर एक बार सोचते रहते हैं कि बिजनेस लॉस मेकिंग हो जाए तो बंद कर दे, वो ज्यादातर उसे चलाते नहीं है. लिमिटेड ड्यूरेशन. Duration of this firm is limited.
According to the death, retirement, lunacy or insolvencies of the partners, पार्टनरशिप फॉर्म विल बी डिसॉल्व। हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म की भी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, क्योंकि कई बार पार्टनर्स की रिटायरमेंट या उसकी डेथ या उसकी ल्यूनेटिक प्रॉब्लम्स और इंसॉल्वेंसी के मुताबिक ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज की जाती है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लिमिटेड रहता है। एब्सेंस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर। It has been observed that when any partners want to shift their share of partnership towards to another partner, first of all they get the permissions from the other partner, then and then the ownership can be transferred. So it is sometime lengthiest process or sometime it is not easy to transfer the ownership of partnership form. हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में ओनरशिप ट्रांसफर जब भी आपको करनी होती है तो आपको बाकी के पार्टनर की परमिशन लेनी होती है। यदि वो बोलते हैं कि आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो तो ही उसे एप्लीकेशन और एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज आप अपनी ओनरशिप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट्स। It has been observed that between the many more partners, sometime in the decision-making process, disputes is incurred because the democratic way of management style is applicable for the partnership firm. हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई बार बहुत से पार्टनर्स जब एक साथ डिसीजन लेते हैं तो कोई डिसीजन राइट या रॉन्ग होता है और उसके हिसाब से कई बार दोनों सभी के बीच में डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं। Maintaining secrecy. In partnership firm, secrets cannot be maintained because every decision is to be taken by grouping manner, so secret cannot be maintained. हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में सभी डिसीजन ग्रुप में लिए जाते हैं, इसलिए सीक्रेट्स कई बार मेंटेन नहीं होते। Delay in decision making process. Any decision is to be taken in a partnership firm is taken by every partner, so sometimes it is time consuming process or delay in decision possible. हम देख सकते हैं कि कई बार पार्टनर्स जब डिसीजन लेने जाते हैं तो डिले हो जाता है उसमें, क्योंकि बहुत सी बार हम देख सकते हैं कि जो भी डिसीजन लेना होता है वो एक से ज्यादा लोग मिल बांट के लेते हैं, इसलिए कई बार डिसीजन लेने में बहुत टाइम भी लग जाता है। Those all are the various limitations have been observed in partnership firm. Thanks for joining with us. Have a great day.